Okay. So the basic objective of today's chapters called redox reactions, that is ki, to identify the redox reactions. Okay, as the redox reaction is the class of reactions. Okay, basically in the redox reactions you have to find out ki which reactions is the oxidation reactions or which reactions is a particular redox reaction. Okay, and that redox reactions जब किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आर ई फ्रॉम द रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं। बेसिकली we have to define the what are the oxidizing agent. Oxidant means oxidizing agent, reductant means reducing agents. Okay, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट you have to explain, yeah, you have to learn the mechanism of the redox reactions. Okay, redox reactions की क्या mechanism होती है, कैसे redox reactions form होती हैं। basically there are certain type of mechanism. Okay, उसमें हम basically by electron transfer बोल सकते हैं, electron transfer होता है, ion exchange method होता है, there are different methods. Okay, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके, एंड आफ्टर दैट we also learned that the concept of oxidation numbers. Okay, हम इस चैप्टर्स में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको पहले स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, now in oxidation number, the use and the classifications of the redox reaction, that is the in the, for example, that is ki synthesis. Okay, so basically in the redox reactions अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं, that is also जो बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं बाय द आयन एक्सचेंज मेथड, ओके, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं उसमें से रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर ना? इन केस अगर किसी भी पॉइंट पर कुछ समझ ना आया, कुछ वर्ड समझ ना आया हो, ओके, एंड कुछ ऑडियो और विजुअल में कोई प्रॉब्लम्स हो, सपोज आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है और मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ओके, तो मेरे को इन्फॉर्म करना, उसी के हिसाब से मेरे को बताना सर वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ. ओके, इन द चैट बॉक्स यू कैन चैट आल्सो. ओके, नाउ सो इन the chapters for today, start from the classical definitions of redox reactions. Okay, जो redox reactions होती हैं उनकी classical definitions क्या होती हैं? Anyone can tell me what are the classical definitions of the redox reactions? Okay, now a classical idea for the redox reactions. Now for example, now where there is oxidation there is always reduction. जहाँ पर कहीं oxidation होता है वहाँ पर हमेशा reduction होता है. Okay, chemistry is essential is a study of redox reactions. Okay, have you understand where is oxidations occur, where is oxidations there is always reductions. Okay, क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? इनकेस अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता सकते हो आप लोग कि सर समझ नहीं आया. ओके, now okay, so chemistry, basically chemistry is deal with the variety of matters and changes of one kind of matter to another kind of matter. That means chemistry basically क्या है, आपका कोई एक substance है that change to another substance. Okay, suppose A product है आपका, B product बन जाता है, तो इसके बीच में जो reactions होती है that is called chemistry. Okay,
केमिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री इज बेसिकली रिएक्शंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस, जो रिएक्शंस होती हैं उसमें कुछ इक्वेशंस होंगी, ओके। So the transformations of matter from one kind to another kind, that is the type of reactions. That means इसमें क्या है, किसी टाइप का reactions हो रहा है, okay? तभी तो वो ट्रांसफर हो रहा है from one atoms to another atoms, okay? Now in this category there are type of reactions. One is the important type of category, that is called redox reactions, okay? आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि टाइप ऑफ रिएक्शंस में देयर इज कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है। बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके, Combination reaction. decomposition reactions and combination reactions, okay. In this series the last part is called redox reactions. in case अगर आपने नहीं स्टडी किया तो आप आज बता रहा हूँ, आज समझ लो उसको, ओके। द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, बेसिकली द नंबर ऑफ फिनोमेना, बोथ फिजिकल बोल सकते हैं एज वेल एज बायोलॉजिकल, ओके, बोथ फिनोमेना कंसर्न विद द रिडॉक्स रिएक्शंस, दोनों ही चीजें इसमें चेंजेस होती हैं, दोनों ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। एंड बेसिकली जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, ओके, वी कैन से बायोलॉजिकल इंडस्ट्री होती है, और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, वहां पर बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, ओके। फॉर एग्जांपल इन केस वी कैन से दैट कि द बर्निंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, अगर हम किसी में फ्यूल बर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टडी किया होगा कार्बन में जब ऑक्सीजन इस तरीके से बर्न करते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, CO2 बनता है। तो बर्निंग इज एनी टाइप ऑफ फ्यूल्स, एनी टाइप ऑफ फ्यूल्स दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक रिएक्शन, जो डोमेस्टिकल रिएक्शंस होती हैं, डोमेस्टिकल एरियाज होते हैं, या ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल पर्पस के लिए जो रिएक्शंस होती हैं, दैट रिस्पांसिबल रिएक्शंस फॉर द ऑक्सीडेशन, ओके। नाउ अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली आपने इतना तो आप लोग जानते हो कि केमिकल जो कंपाउंड्स है लाइक कास्टिक सोडा, ओके, कास्टिक सोडा को क्या है, ऑपरेशंस ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरी, जैसे फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा, ओके। जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज में कोरोजन होता है, बैटरीज जो ड्राई एंड वेट बैटरीज होती है, ओके, एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स है, ओके, एंड these are the example of the redox processes, okay. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर देखा होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी। इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द हाइड्रोजन इकोनॉमी, मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। एनीवन नोज द हाइड्रोजन इकोनॉमी? हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट द यूज ऑफ हाइड्रोजन, Use of liquid hydrogen as वेरी fuel. गुड, यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन उसको एज फ्यूल, ओके, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी, ओके। लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी पढ़ के आओ कहाँ पर। बेसिकली जनरल सा क्वेश्चन है, आप 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आप लोग जानते होंगे लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ पर यूज होता है, इस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग थोड़ा सा आप पुराने नोट्स आप खोल के देखो, अपनी कॉपी खोल, वहां पे मिल जाएगा, ओके। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल, एनीबॉडी नोज द डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल? ओके, वेरी गुड अवे। जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, ओके। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल, दैट इज आल्सो फिनोमेना ऑफ रिडॉक्स प्रोसेस, ओके। नाउ दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। नाउ अभी हम चलते हैं क्लासिकल डेफिनेशंस या क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल बेटा, ऑल ऑफ यू नो दैट कि ओरिजिनली जो टर्म ऑक्सीडेशन का टर्म कहाँ से आया, बेसिकली द टर्म इज डिस्क्राइब बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली क्या है जो टर्म है डिस्क्राइब, ऑल ऑफ यू नो दैट इन द एटमॉस्फेयर देयर इज अराउंड 21% ऑक्सीजन होता है बेटा, 20 या 21%, जो भी आप समझते हो, 21% ऑक्सीजन है, ऑल ऑफ यू नो दैट, ओके।
एंड नाइट्रोजन तो आपका Yes. बहुत ज्यादा है, बट नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 78 to 79%, because that is the this behave as a noble gases. Okay, so nitrogen basically reactions नहीं करता most of the compounds या most of the atoms या elements. Okay, so ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट्स है या एक ऐसा गैस है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस जो आपका अर्थ में ऊपर जो चीजें प्रेजेंट रहती हैं उसमें ऑक्सीजन हर किसी से रिएक्शंस कर जाता है। दैट्स वाई आपके अर्थ क्रेस्ट में जो चीजें पाई जाती हैं उनको हमेशा ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, सोडियम ऑक्साइड मिलता है, सोडियम पर मिलता है। जितनी भी चीजें आप अर्थ क्रेस्ट में मिलती हैं, ये जब भी आप माइनिंग करते हो किसी भी चीज की उसमें ऑक्सीजन मिलता ही मिलता है, फेरस ऑक्साइड मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है। जिस चीज की भी आप माइनिंग करोगे 99.100% आप मान के चलो उसमें ऑक्सीजन है रहेगा। ओके, सो दैट इज द टर्म ऑक्सीडेशन यहाँ से आया कि जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन्स हैं वो रिएक्शंस कर जाती है जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स या अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्शंस करने के बाद उनके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके, फॉर्म देयर ऑक्साइड, दैट रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशंस अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपको कि आपके पास Mg आपका प्योर फॉर्म में मिला, ओके, प्योर फॉर्म में आपका Mg है। ओके, ये Mg को अगर आपके इन्वायरमेंट में प्योर फॉर्म में Mg है तो इन्वायरमेंट में आपकी ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो ये आपको MgO में मिलेगा। समझ गए बेटा, MgO दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ओके, ना इसका स्टेट आप लोग लिख सकते हो। इस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं इस तरीके से आपको मिलेगा ऑक्साइड फॉर्म में। एवरी एलिमेंट यू कैन थिंक अबाउट द एलिमेंट्स मोस्टली वो आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा। ओके, जो भी एलिमेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो नोबल गैसेस वगैरह होती हैं वो रिएक्शंस नहीं करती हैं किसी से, इसलिए वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं मिलती। ओके, नाउ सो नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल सल्फर एंड O2, इसका रिएक्शंस करेंगे दैट इज आल्सो O2। ओके, हरीश व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? ओके, नाउ दीज रिएक्शंस आप लोग समझ गए कि यहाँ पर टर्म क्या आया। ओके, बेसिकली अभी मैंने बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये एक आइडिया हो गया आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ओके, नाउ जब केमिस्ट्री आपकी ग्रू हुई, केमिस्ट्री जब जैसे केमिस्ट्री को लोग समझने लगे, इट वाज द नेचुरल एक्सटेंट दैट कि द ऑक्सीडेशन टर्म जो आया, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन टर्म आया कि वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं है, विच इज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन बट दैट द अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दैट मीन्स जब आपको समझ में आया, केमिस्ट्री को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया तो समझ में आया कि सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से नहीं है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, बट अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऐड होने से भी ऑक्सीडेशन होता है। ओके, वो कब हुआ मैं बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूँ आपको चैप्टर्स की, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, नाउ द ऑक्सीडेशन टर्म जब आया तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन टर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस किया तब हमको आइडिया लगा कि ऑक्सीडेशन टर्म सिर्फ ऑक्सीजन के ऐड होने से नहीं होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल इन केस आपका मैग्नीशियम है, ओके, नाउ इन केस आपका फ्लोरीन गैस इसमें ऐड हो जाता है, दैट आल्सो फॉर्म MgF2। ओके, यहाँ पर भी इनका ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन चेंज हुई, दैट इज ऑक्सीडेशन जो होता है दैट इज आल्सो अकर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। ओके, बाय द एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। ओके, नाउ इन सब का मैं वन बाय वन एग्जांपल बताऊंगा। नाउ अभी आप स्टार्ट करते हो कि द क्लासिकल आई डेफिनेशंस, definitions
ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, RxN लिखता हूँ बेटा, इसको आप समझ जाना, दैट इज द मेरा फॉर्म है कि मैं इसको RxN लिखता हूँ, मोस्टली आपको सब जगह इसको यूज मिलेगा। ओके, RxN सभी टीचर्स लोग लिखते हैं। ओके, ना ऑक्सीडेशन आप समझ गए, इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है। रिडक्शन का भी डेफिनेशन लिखो आप, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, सो बेसिकली ऑक्सीडेशन का फर्स्ट टर्म हमने क्या पढ़ा, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ गया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मीन्स ये है, फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ Mg+O, दैट इज द सेम एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, MgO, सॉरी। ओके, another example that is S sulfur plus O, sorry O नहीं, यहाँ पर O2 है, ऑक्सीजन गैस है। ओके, and that is called SO2. Okay, next example Mg plus F2, that is MgF2. Okay, and next in case Fe plus S is called FeS. समझ में आया? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ सिमिलर इसमें देखो, उन्हें नंबर 1 एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन हुआ, अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, दैट इज वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर हो गया आपका रिडक्शन। ओके, नाउ यहाँ पर लिखूं मैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव elements. Okay, now in electronegative elements there is a example is called that, इसको मैं different color से लिखता हूँ, HgO है, एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ इसका जब रिडक्शन होता है, ये Hg+O2 में फॉर्म हो जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल H2O है, इसमें जब कोक के साथ रिएक्शंस करते हैं, कोक एक कार्बन का फॉर्म है। ओके, ये CO+H2 में फॉर्म हो जाता है। ओके, एंड अनदर एग्जांपल इज दैट HgCl2 है, Cl क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ओके, एंड जब ये रिएक्शंस करता है विथ SnCl2 से, तो ये Hg2Cl2 फॉर्म होगा, प्लस SnCl4 फॉर्म होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट FeCl3 प्लस H2 हो गया। नाउ ये फॉर्म हो जाएगा FeCl2 प्लस HCl। ओके, नाउ इन केस अगर मैं बैलेंस करूं इस रिएक्शंस को, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं हो पाई, 2 यहाँ पर आएगा और बाकी सब बैलेंस। ओके, नाउ यहाँ पर बैलेंस करूं, 2 यहाँ पर आएगा एंड 2 यहाँ पर आएगा। ओके, 2 हियर एंड 2 हियर, 2 हियर। ओके, ना अभी देखो कि हाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ शिवा प्रसाद। ओके, नाउ यहाँ पर HgO देखो, यहाँ पर यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ Hg में, सिर्फ जो बता रहा हूँ उतना ध्यान दो। अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर HgO में, फॉर एग्जांपल इनकेस यहाँ पर Mg में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो MgO बना, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये बना, मैग्नीशियम में F ऐड हुआ तो ये बना, Fe में S ऐड हुआ तो ये बना। ओके, ना इन सिमिलर केस यहाँ पर H2O से यहाँ पर क्या निकला बेटा,
H2 से जो चीज निकला है यहाँ पर क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, तो आपका ये बना, समझ में, ऑक्सीजन निकला तो H2 बना, समझ में आया। नाउ यहाँ पर ये ओके ना, अभी एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे याद करना पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं वाटर गैस। ओके, CO+H2 के फॉर्मेशन को दोनों जब इसी रेशियो में होते हैं इसको वाटर गैस बोलते हैं। ओके, नाउ सिमिलर लाइक दैट, यहाँ पर HgCl2 है, यहाँ पर Hg2Cl2 है, FeCl3 FeCl2, इन जहां पर मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? अभी मेरे से पूछो, कोई डाउट है या मैं आगे मूव करूं? You can tell me directly or you can tell me in the chat box also. Okay, now second point is that in the oxidation term, that is the second point is that अभी additions of oxidations तो हो गया. Now similar second point is that removal of hydrogens, removal of hydrogens or any electropositive elements. Okay, now the electropositive elements is that the removal of H2S plus Cl2 S HCl. क्लियर है? सेकंड एग्जांपल इज दैट Hi plus O2, similar like that 2H2O प्लस यहाँ पर कितना 2I2 बनेगा। इनकेस मैं बैलेंस रिएक्शंस लिखते जाऊँ यहाँ पर, तो आप बैलेंस रिएक्शंस लिखते जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर 2HCl होगा। ओके, फॉर एग्जांपल H2O2 प्लस 2Ki, ओके, एंड 2KOH plus I2, similar like that Cl2 plus 2Ki, next is that 2KCl plus I2. ओके, नाउ यहाँ पर देखो बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पर आप क्लियर आउट होना, H2S से मैंने यहाँ पर H2 निकाल दिया, दैट मीन्स हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ओके, सिमिलर काइंड दैट यहाँ पर HI से मैंने यहाँ पर H निकाल दिया I2 से। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सिमिलर इज दैट यहाँ पर KI है, K क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से मैंने K निकाल दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, KI से मैंने यहाँ पर K निकाल दिया, दैट इज ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ, बिकॉज K इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। समझ में ऑल ऑफ यू? नाउ अभी मैं बात कर रहा हूं द सेकेंड पॉइंट फॉर दैट, इनके लिए, दैट इज एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और Ne electropositive elements. Okay, now in this, yes Sujal, any problems beta?
नाउ इन केस यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ओके, यहाँ पर मैं H2 ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल्स। जो भी रिएक्शन है इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। बस यहाँ पर ये देखो कि H2 ऐड होने से यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर्म हुआ, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। सिमिलर केस दैट यहाँ पर Cl2 है प्लस H2 ऐड हुआ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, HCl, 2HCl। HgCl2 है आपका, प्लस यहाँ पर Hg ऐड हुआ, दैट इज यहाँ पर Hg2Cl2, ओके। नाउ Cl2 plus Cu is equal to Cu2Cl2। नाउ CH2 डबल बॉन्ड CH2 में H2 ऐड हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना, ओके। नाउ इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स कि यहाँ पर H2 ऐड हो गया, 1H यहाँ पर ऐड हुआ एंड 1H यहाँ पर ऐड हुआ, तो CH3 बन गया, ओके। सिमिलर केस दैट Cl2 में आपका H2 ऐड हुआ, तो यहाँ पर HCl बन गया। HgCl2 में Hg ऐड हुआ, दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ओके। तो ये आपका HgCl2 बन गया। सिमिलर काइंड है CuCl2 में दिस ये ऐड हुआ, तो ये आपका Cu2Cl2 बन गया, ओके। दैट इज द क्लासिकल आइडिया और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। नाउ इसमें बेटा दोनों रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि Na में जब H2 ऐड होते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ Na होता है और रिडक्शन होता है। नाउ एनीबॉडी टेल मी दैट कि जब अगर ऑक्सीडेशंस में फॉर एग्जांपल आपका सोडियम में मैं क्या ऐड कर दूं, एनीबॉडी टेल मी। सोडियम में मैंने ऐड कर दिया आपका, ओके, फॉर एग्जांपल, और क्वेश्चंस लिख सकते हो डायरेक्टली, दैट इज सोडियम प्लस H2 ऐड हुआ, यहाँ पर 2NaH बना, ओके। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ Na हो रहा है या रिडक्शन ऑफ Na हो रहा है, ओके। देखो बेटा इन दिस रिएक्शंस द ऑक्सीडेशंस ऑफ Na नॉट रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन्स का एडिशंस क्या बोलता है बेटा, हाइड्रोजन्स का एडिशंस क्या बोलता है, हाइड्रोजन्स का एडिशंस बोलता है, क्या बोलता है, रिडक्शंस। यहाँ पर देखो अभी जो मैंने बोला हाइड्रोजन्स का एडिशंस बोलता है रिडक्शंस, ओके ओके ओके। अभी दिख रहा बेटा, अब है जो NaH2 एंड NaH2 Na plus H2 is equal to NaH रिएक्शन लिखा मैंने। इन दिस रिएक्शन इज दैट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा या रिडक्शन हो रहा, ओके। इन दिस रिएक्शन वी कैन सी दैट क्लियरली दैट यहाँ पर हाइड्रोजन्स का एडिशन हो रहा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन हो रहा, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा, बोला सर ने बोला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा, क्यों? एनीबडी knows the reasons behind this? The reason is that as reason is that anybody know? Reason is that as हेलो सर, वो H2 Na से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसलिए। H2 Na से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, देखो इन दिस रिएक्शंस H इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। Negative. इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Na, that means H is more electronegative than Na, that is why the concept इसमें क्या लगेगा, that is the concept is addition of electronegative elements. Okay, so electronegative elements, that is H, is oxidation. समझ में आया all of you? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड होना क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड होना, स्टार्टिंग से ही मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड होना बताता है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड होना आपको बताता है, क्या बताता है, ऑक्सीडेशन। ओके, इन सिमिलर केस दैट, एक अनदर एग्जांपल देता हूं आपको, उसको भी सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज दैट O2 plus 2F2 is equal to OF2, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है मुझे बताओ, टेल मी एनीबॉडी। Reduction of F2. वेरी गुड, रिडक्शंस ऑफ F2। ओके, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा बेटा। ओके, बिकॉज F इज, ये येलो कलर दिख रहा है आपको, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O। ओके, एंड यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, वेरी गुड अनुष्का, सो एडिशन ऑफ electropositive elements, that is O, is reduction। समझ में आया all of you? That is the classical definitions। ओके, ये स्टार्टिंग का डेफिनेशन था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ओके, नाउ कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस आया, जैसे जैसे केमिस्ट्री इवॉल्व हुआ, केमिस्ट्री ग्रू अप हुआ, या मॉडर्न साइंटिस्ट जब लोग आए तो उन्होंने एक मॉडर्न डेफिनेशंस गिवन किया। ओके, व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशंस, एनीबॉडी नोज द मॉडर्न डेफिनेशंस? redox reaction। The modern definitions of redox reactions, that reactions is only and only based on transfer of electrons। समझ में आया बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है जो मॉडर्न डेफिनेशन है। नाउ अभी आप देखो, अगर ट्रांसफर हो रहा तो वहां पर लॉस होगा और गेन होगा। ओके,
जहां पर किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो इस लॉस और गेन की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ओके ना, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लॉस होता है, कैसे फाइंड करना, वो मैं अभी बताऊंगा। ओके एंड जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, gain of electrons, that is called reduction। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ ये चीज आपको तो देखना है। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशंस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शंस। ओके नाउ फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग का फर्स्ट एग्जांपल क्या था? एनीबॉडी टेल मी। 2 mg plus O2 gives mg rise to 2 MgO. plus O2, 2 mg plus O2 that gives us 2 MgO। ओके नाउ यहाँ पर ऑल ऑफ यू नो दैट अगर मैं रिएक्शंस देखूं यहाँ पर बेसिकली, तो mg यहाँ पर क्या चार्ज है? यहाँ पर mg का +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। -2। ओके बेसिकली जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक मेटल्स होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कंपाउंड में आपका mg आता है, तो mg आएगा, mg को प्लस चार्ज होगा। नाउ इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि ये एग्जाम्पल है बेटा आपका, इसको एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेट्स कॉल mg। mg से आपका mg पॉजिटिव फॉर्म हुआ। यहाँ पर अगर मैं बोलूं mg से आपका mg पॉजिटिव फॉर्म हुआ, इतना समझ में आ रहा है आपको? एंड O2 से आपका यहाँ पर O2 नेगेटिव फॉर्म हुआ है। यहाँ पर तो सिमिलर O2 था बेटा आपका, एंड O2 से आपका O2 नेगेटिव फॉर्म हुआ है या 2O नेगेटिव, इतना फॉर्म हुआ है। इतना जानते हो आप लोग फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले ये बताओ किसको समझ में नहीं आया? देयर आर 65 पर्सन्स, आप लोग इतने लोग हो। एनीबॉडी गाइस टेल मी कि इज देयर एनी डाउट यहाँ पर O2 नेगेटिव क्यों आया, mg पॉजिटिव क्यों आया? अदरवाइज मैं मूव ऑन करूं। इनकेस अगर किसी को डाउट है, अगर आप खुल के नहीं बता पा रहे, यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ओके चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज करो, मैं बता दूंगा। ओके सो यहाँ पर O2 डबल नेगेटिव है, mg पॉजिटिव। ओके नाउ इस इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशंस हाफ रिएक्शंस। ऑक्सीडेशंस हाफ रिएक्शंस। ओके शॉर्ट फॉर्म में इसको OH बोलते हैं। ओके एंड सेकंड बोलते हैं रिडक्शन हाफ, इसको RH बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। याद रखना, ज्यादा उतना जानकारी के लिए नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। ओके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ से आपको गिवन हो। ओके नाउ यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होता है दैट इज अगर किसी भी मेटल से, मेटल्स फॉर्म में आपका मेटल्स हो, मेटल्स है आपका एंड मेटल्स, अगर मेटल से आपका Mg2 में जाता है, Mg+2 में जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स 2 लूज किए इलेक्ट्रॉन्स उसने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं Mg का एग्जाम्पल ले लूं और वी कैन से Na का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। Na आपको ज्यादा एग्जाम्पल में देखा होगा, Na 11 होता है। ओके नाउ Mg आपका 12 है। ओके Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281। ओके जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर कर दूंगा तो ये फॉर्म हो जाएगा बेटा Na पॉजिटिव। ओके एंड Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। इतना आप लोग समझते हो? ओके इन सिमिलर केस देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2 282। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के बाद दिस फॉर्म एज Mg+2। ओके
एंड दीज +2 इन द सिमिलर केस, ये जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं, ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर लेगा? ये गेन कर लेगा आपका O2। O2 जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 8 2 6 होता है। ओके, 2 6 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है बेटा? डिफिशियंसी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, दैट मीन्स जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड ये फॉर्म कर देगा O2 डबल नेगेटिव एंड दैट इज 2 8। ओके, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड में दोनों के ऑक्टेट्स कंप्लीट है, इसलिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बना है। अदरवाइज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, कंपाउंड फॉर्म होता ही नहीं। ओके, सो इस केस में अगर मैं बोलूं, अगर मैंने Mg+2 लिखा है तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखने का एक तरीका होता है, इन केस अगर मैंने यहाँ से -2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए तो ये Mg2 पॉजिटिव बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। वेरी गुड। ओके, नाउ इन सिमिलर केस यहाँ पे मैंने अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, देखो सिंगल O के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़े? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो। यहाँ पर डबल O है तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ रहे हैं, ऐड। तो नाउ अगर इसी रिएक्शंस को मैं फिर से लिखूं, दैट इज Mg+2 O2 2 O डबल नेगेटिव्स। ओके, नाउ जब मैंने यहाँ पर लिखा था इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितना थे इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ थे एंड यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ थे। ओके, यहाँ से लूज किया था बेटा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ओके, नाउ बेसिकली एक सिंपल ट्रिक होती है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को आपको कहाँ ट्रांसफर हुए, कहाँ ट्रांसफर नहीं हुए, किस तरफ प्लस लगाएं, किस तरफ माइनस लगाएं, इस सब का एक कंफ्यूजन दूर करने का एक